नीचे। اور ایک پرفارمر کے طور پہ آپ کو کیسی لگتی ہے؟ پرفارمر یہ تو اوریجنل شیلا ہے. I know, I was like, wow! پھر آپ کیا کرتے ہیں وہاں؟ آپ کا علم کیا کرتا ہے؟ جی ہاں، کالی بلی کی لوازمات کے ساتھ ہم شہد کا استعمال کرتے ہیں اگر کٹا پٹا ہے. السلام علیکم ناظرین، ہم نے مارننگ شوز کو رات کے شو کے اندر آج موضوع بحث بنایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس چارٹ سے آپ کو ظاہر ہو جائے گی. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کرنٹ افیئرز کے شوز بڑے تگڑے ہیں، ہر وقت پاکستان میں کرنٹ افیئرز ہوتا ہے. یہ پیمرا کی رپورٹ ہے جو آپ کے سامنے ہے، ہم نے ترتیب نہیں دی ہے. پیمرا کی رپورٹ آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ پیمرا کی رپورٹ آپ کو بتا رہی ہے کہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کے جو چینلز ہیں وہ سیٹلائٹ چینلز جو ہیں 20 ہیں، اور جو چینل جن کے لینڈنگ رائٹس اپرووڈ ہو گئے وہ 5 ہیں، تو ملا کے ہو گئے 25. جو انٹرٹینمنٹ کے شوز ہیں 38 آلریڈی موجود ہیں، اور 16 چینلز کے لینڈنگ رائٹس ہیں. اور اگر میرا حساب جو کہ عموماً خرابی ہوتا ہے اس کے باوجود میں کچھ ترتیب لگاؤں تو یہ بہت زیادہ بنتے ہیں. تو ٹی وی چینلز پاکستان کے اندر اگر 60-68 کے قریب ہیں، اس میں سے 30% نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کا کانٹینٹ ہے، اور جو باقی 70% کانٹینٹ ہے اس میں سے 38% مارننگ شوز کا ہے. یعنی دن بھر جو بات چیت ہوتی ہے وہ مارننگ شوز کے حوالے سے ہوتی ہے. پھر 2 ریپیٹس ہوتے ہیں، بعض چینلز کے اوپر 4 ریپیٹس بھی ہوتے ہیں مارننگ شو کو ملا کے. بہت زیادہ ایئر ٹائم ہے مارننگ شوز والوں کے ساتھ. تو مارننگ شوز والوں کو ہم نے آج بلایا ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جگن کاظم، یہ صبح تمہاری ہے ایکسپریس نیوز. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. فرح حسین نیڈز نو انٹروڈکشن لائک جگن، مارننگ ود فرح آن ATV. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. فون پر ناظرین ہمیں مایا خان صبح سویرے مایا کے ساتھ سما نیوز، شائستہ واحدی بھی ہمیں جوائن کریں گے اٹھو جاگ پاکستان جیو، اور ندا یاسر گڈ مارننگ پاکستان ARYC. لیٹ می اسٹارٹ ود یو فرح. یہ جو ڈیبیٹ پاکستان میں چلتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز والے جو ہیں ان کا بڑا کنٹرول ہے، ان کا بڑا انفلوئنس ہے، لیکن جب میں اعداد و شمار دیکھتا ہوں تو آپ لوگوں کے پاس تو بہت ایئر ٹائم ہوتا ہے. سب کے پاس نہیں، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں صبح کا سٹارٹ جب مارننگ شوز جب سٹارٹ کیے گئے تھے اس وقت ابھی نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کا شاید اس طرح کا بوم نہیں تھا. I'm talking about some 7-8 years back, یا اس سے بھی پہلے آپ دیکھیں جب PTV نے ٹرانسمیشن شروع کی تھی تو نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کچھ اتنا ہوتا نہیں تھا. تو مارننگ سلاٹ کا مطلب یہ تھا کہ آفس گوئنگ جو لوگ ہیں، خواتین صرف ٹارگٹ نہیں تھیں، آفس گوئنگ جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک ہولسم پروگرام جس میں ان کو تفریح بھی، انفارمیشن بھی، خبریں بھی اور ساری چیزیں ملا جلا کر ایک پریزنٹیبل انداز میں ان کو بتا دی جائے. سو اب اسی کو کاپی کرتے ہوئے وہ جیسے مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پاس اس میں بہت ساری چیزیں ایونیوز ایڈ ہوتے گئے، اور چونکہ چینلز کے پاس جو ہے ہمیشہ سے سافٹ ویئر کی کمی رہی ہے، اور یہ مارننگ سلاٹ جو ہے اس میں بہت آپ کے پاس لیٹسٹ اور جسے کہتے ہیں لائیو روزانہ کا ایک نیو پروڈکٹ ہوتا ہے. سو آپ اسے اگر ری رن کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ اس کا فیڈ بیک اچھا. لیکن جگن کنٹرول کرنے میں ایئر ٹائم جو ہے وہ پاور ہوتی ہے، وہ ریسورس ہوتا ہے، اور بھلے 2 مرتبہ ریپیٹ ہوں یا 1 مرتبہ چل رہا ہو 1.5 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا شو، یہ بڑی پاورفل. عموماً پاکستان میں میڈیا کی بحث کے اوپر ریکگنائز نہیں کیا جاتا کہ آپ لوگوں کے پاس کتنی پاور ہے اور آپ لوگ کس طرح قومی بحث کو شیپ کرتے ہیں، یہ ریکگنائز نہیں کرتے. جو فرح نے کہا وہ بالکل ٹھیک کہا کہ یہ اٹ واز انٹرٹینمنٹ نیوز اینڈ آل آف دیٹ. اب کچھ نیوز اور وہ جو انفارمیشن گیونگ والا ایسپیکٹ ہے وہ کم ہو گیا ہے اور زیادہ انٹرٹینمنٹ کی طرف آ گئے ہیں. میرے خیال سے کافی ویلیو دی جاتی ہے مارننگ شو اینکرز کو. پاور تو ہے نا، پاور ہے، ضرور ہے. کپڑوں کے رنگوں سے لے کر کچن تک، اور اس کے علاوہ روحیں بدروہیں نکلوانے سے لے کے شادیاں کس طرح کروانی ہیں، اور آپ ہاؤس ہولڈ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. یاد رکھیں آپ خواتین کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ٹارگٹ ناٹ ان دا سینس کہ یو شوٹ دیم، ٹارگٹ ان دا سینس کہ
दे आर योर कैप्टिव व्यूअर। कभी कभी शूट भी कर जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, Overshoot कभी कर जाते हैं, कुछ ओवरशूट कर जाते हैं लेकिन बड़ी पावर है आपके पास। लेकिन मैं हर शख्स के पास होता है साहब, टेलीविजन पे एनीबॉडी इज कमिंग ऑन टीवी, उसका एक से तो लेकिन इंफरटेनमेंट एंटरटेनमेंट अगर आप देखें, मैं सोच रहा हूँ कि अगर अमेरिका का जो ब्रांड है वो करंट अफेयर्स में, तो किसी करंट अफेयर्स के सेट के पीछे उनका झंडा नहीं लगा होता, हॉलीवुड के हर मूवी में उनका झंडा होता है। हिंदुस्तान की करंट अफेयर्स के शोज में तो कहीं पे इंडिया शाइनिंग नहीं वो बात करते, ये करते हैं तो सटल तरीके से करते होंगे, लेकिन बॉलीवुड में बड़ी बात करते हैं। तो आप तो ब्रांड डिफाइन करते हैं, पाकिस्तान का ब्रांड आपके पास है, हमारे पास तो खैर मुझे नॉट एग्री, ब्रांड आपके पास। गिला सा लग रहा है मुझे। नहीं, मैं तो चाह रहा हूं कि आप एक्सेप्ट कर लें ताकि हम पे से जिम्मेदारी हट जाए ना फिर। नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं। जब आप बात करते हैं यहाँ बैठकर हार्डकोर चीज़ों की, तो आप सोशल फैब्रिक को बड़ी हद तक निगलेक्ट कर रहे होते हैं ना। आप तो पॉलिसी मैटर्स की बात कर रहे होते हैं, आप फैक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, आप करंट इश्यूज़ की बात कर रहे होते हैं। हम बात कर रहे होते हैं सोशल फैब्रिक की, हम बात कर रहे होते हैं टैबूज़ की, हम बात कर रहे होते हैं उन मसाइल की जो डेली डे टू डे बेसिस पे ना सिर्फ ख़वातीन को, मर्द हज़रात को भी फेस करने पड़ते हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि हम उनके दिल के नज़दीक या दिल की बात ज़्यादा करते हैं। सो वी रीच टू द राइट पॉइंट। आप चूँकि दिमाग से दिमाग तक की लेवल की बातें कर रहे होते हैं, आपके पास आप दिल कंट्रोल करते हैं। हाँ, हम दिल कंट्रोल करते हैं और हम दिल के लेवल पर ही प्ले करते हैं, और दिल हर बंदे के पास है, दिमाग पाकिस्तान में ज़रा कम लोगों के पास है। सबके पास इस्तेमाल करने में कभी कभी कोताही हो जाती है। जरा इस पे आए कि मॉर्निंग शो क्या थे और क्या बन गए। आप तो जरा बाद में ही फरा काफी अरसे से, ये बाद वाले जो मॉर्निंग शो हैं ये क्या, ये किस पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर, जरा इस पे हमें बताएं आज। कहना चाहिए समथिंग बनाए। जब मुझे मॉर्निंग शो का कहा गया तो मेरे लिए एग्जाम्पलरी लोग जो थे वो फरा जैसे थे कि एक डिसेंट डिग्निफाइड टुगेदर प्रोग्राम जहाँ पे बात पते की जाती है। जब मैंने भी इनसे कुछ अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें की तो उनमें से इन्होंने, आई रिमेंबर कंक्लूजन में बातें निकाल के कहा कि जी ये इनकी ज़िंदगी में हुआ, उन्होंने खुल के आपको बताया आप भी ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं या कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल बनाया। यूजुअली मुझे भी, मेरे दिमाग को, एटलीस्ट सेंसिबिलिटी को ये चीज़ अपील करती है कि आप एक मसला लें, उसको डिस्कस करें, चाहे बेसिकली केस स्टडी डालें और फिर उसका हल दें। आजकल जो कुछ मॉर्निंग शोज का स्ट्रक्चर बन गया है उसमें मैं भी कहती हूँ, मैं रिसेंटली मैंने एक डांस वीक भी किया जिसमें खुद भी मैंने डांस किया, हल्ला गुल्ला मज़ा सब ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद कुछ थोड़ा सा, मैं अपने बारे में कहूँगी, मैं और किसी के ऊपर बात नहीं करूँगी, शायद मैं भी हटती जा रही हूँ उन चीज़ों से जो मुझे भी मैटर करती हैं। क्योंकि हल्ला गुल्ला नाच गाने से यहाँ आप हंसा देते हो, लेकिन वो कौन सी अहम बातें हैं जो आप कहना छोड़ देते हो। मैंने शायद अपने शो में डांस इसलिए भी किया कि मैं ये कहना चाहती थी कि जो लोग परफॉर्म करते हैं वो बुरे नहीं हैं और उनके ऊपर हम तनकीद करते हैं। शादियों पे हम सब डांस करते हैं अपनी फैमिली की। दिलचस्प बात आप कह रहे हैं कि मैं शायद ये कहना चाहती थी। मैं जरा शायद से बात को आगे लेके चलता। शाइस्ता वाहिदी हमारे साथ लाइन पर है जियो टेलीविजन पर। शाहिदा साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? क्या हाल चाल है आपके? खैरियत ठीक ठाक। जुगन काज़म फरा साहब हमारे साथ मौजूद है। मौजूद बिल्कुल, मुझे पता चल रहा है कि आप फेंटियां लगा रहे हैं। नहीं, हम आपसे जो बात करना चाह रहे हैं और व्यूअर के सामने ये तसव्वुर रखना चाह रहे हैं कि जो उनका ख्याल है कि न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स वालों के पास बड़ी ताकत है। अगर आप एदाद शुमार देखें तो आप लोगों के पास बहुत ताकत है, आप बहुत ज्यादा कंटेंट कंट्रोल करते हैं। इस बात का इदराक तो होगा ना आपको, हाउ पावरफुल यू गाइस आर। जी बिल्कुल, मुझे इस बात का है इदराक। आप मुझे बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मॉर्निंग शोज जिस तरफ चल निकले हैं अपनी टीआरपीज बढ़ाने के लिए, अपनी रेटिंग लेने के लिए, और एक के बाद एक जो मुकाबले पे आ गए हैं, वो आपका ख्याल है कि कोई थोड़ी नॉट सीरियस हो गए हैं बहुत? ये वैसे आपने अच्छा किया कि मेरे बिहाफ पे सवाल सोच लिया। मैं ये नहीं पूछना चाह रहा था आपसे। मैं तो सिर्फ समझना चाह रहा था कि मॉर्निंग शो जिस तरह आप बनाते हैं वो किस पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं? वो इसी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। दरअसल साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जुगन ने अभी जो बात कही है मैं उससे 100% एग्री करती हूँ। और मेरा ख्याल है हर होस्ट जो इस वक्त किसी भी चैनल पे मॉर्निंग शो कर रही है वो खुद भी अंदर से महसूस करती होगी कि कहीं कोई डेफिशिएंसी, कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो हम लैग कर रहे हैं, और हम इसको शायद एक ऐसी तरफ ले जा रहे हैं जहाँ मुकाबला भी है, और इस मुकाबले में हम एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी करते हैं जहाँ जिसमें हम खवातीन को पता नहीं क्या क्या भेज देते हैं ऐसी चीज़ें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपका मुआशरा और मेरा मुआशरा देखना वही चाहता है, देखना वही चाहता है। शाइस्ता जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं?
बिल्कुल ठीक ठाक। जुगन क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक. It's been a while. बहुत जबरदस्त. But शायद से you remember, like, I mean, the fact is, at the end of the day, ये बात बड़ा इन्होंने एक valid point raise किया है. रेटिंग शायद आपको भी पता है, फरा आपको भी पता है कि जब कोई तमाशा लगाओ तो हाई आएगी. जब आप तमाशा ना लगाओ. जुगन ना मैं चैनल की मालिक नहीं हूँ, आप चैनल की मालिक नहीं हैं. जब रेटिंग नहीं आएगी तो क्या चैनल वाले आपके प्रोग्राम को ज्यादा दिन चलने देंगे? वही बात, मैं वही आपके साथ एग्री कर रही हूँ कि द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे हम फाइनल से नहीं देते. तो उसके साथ मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि आप दुल्हन का सूट टांगिए और उसके ऊपर उसको लेने के लिए 1,52,000 मैसेजेस आ जाते हैं, और आपने अगर ये कह दिया कि आइए फ्लड विक्टिम्स को SMS कीजिए और इन SMS का पैसा उन तक जाएगा, तो 1300 SMS आते हैं. अच्छा, ये जरा ठीक रेटिंग की बात जरा इस पे भी बात करते हैं हम, इस मामले को लेकर. रेटिंग होती क्या है? रेटिंग तो आपके मेरे ख्याल में 5-6 शहर है, उसके अंदर इंतहाई महदूद सैकड़ों के अंदर कुछ घर हैं. उन इंतहाई महदूद सैकड़ों घरों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो कभी कभार जब अपना रिमोट मूव करते हैं तो उससे रेटिंग बनती है. तो फिर ये कहना कि हम इस पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, फिर तो हम 500,000 घरों की नुमाइंदगी. शाइस्ता ने एक हकीकत के एक पहलू की तरफ इशारा किया. एक दूसरा पहलू भी तो है ना तलत साहब. अब ये देखिए कि जहां पर फर्ज के किसी एक नेटवर्क की बात कर लें, वो एक तरफ बड़ी सीरियस प्रोग्रामिंग कर रहा होता है, उसी चैनल ने ही तो मॉर्निंग शोज रखे हुए हैं और वही मॉर्निंग शोज पे आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं. अगर चैनल की कोई एक पॉलिसी हो, अगर चैनल की अपनी एक पॉलिसी हो, अगर कोई एक जिसे कहते हैं आप थिंक टैंक मौजूद हो, तो कम से कम ये चीजें जो है कंट्रोल्ड हो. आप होस्ट को खाली ब्लेम नहीं कर सकते. नहीं, मैं ब्लेम बिल्कुल ये ना ही ब्लेम गेम है और ना ही इसमें हम अच्छे और बुरे की बात करें. बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर बात करना चाहते हैं. एक्चुअली शाइस्ता एंड आई हैड दिस कन्वर्सेशन वंस. आपको आई डोंट नो याद होगा कि शाइस्ता जी आई सेड टू यू कि हम लोग चाइल्ड मोलेस्टेशन जैसे टॉपिक को क्यों नहीं टच कर पाते. याद है वी टॉक्ड अबाउट दिस इन द ब्रेक. आई टच्ड इट वेरी ओपनली एंड बोल्डली. I didn't get the permission to do that. That's what I'm getting at. मैं on a personal level बात कर रही हूँ. But Shaista and I were having this conversation once. I remember I was on a show and we were talking about this in the break. कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में एक इंसान होते हुए, and मेरे लिए स्पेसिफिकली एज एन औरत होते हुए, उनके लिए, आपके लिए, जो आपको बहुत बॉदर करती हैं कि यार हमारे मुल्क में चाइल्ड मोलेस्टेशन का रेट रिडिकुलसली हाई है. ठीक, हम उसकी बात नहीं कर सकते. लेट मी टेक अ ब्रेक हियर. ये नहीं कि मैं सेंसर करना चाह रहे हैं आपकी बात को. ब्रेक नहीं, बिल्कुल नहीं. ये वो प्रोग्राम नहीं है, ये वो प्रोग्राम नहीं है जहाँ पे सेंसरशिप होती है. नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. हम सिर्फ जानना ही चाहते हैं कि टेलीविजन के ऊपर जो मीडियम है मैस आउटरीच का बहुत से लोगों तक पहुँचता है, करोड़ों लोगों तक पहुँचता है. जो लोग टेलीविजन पर आते हैं जिनके पास ताकत है, क्या वो उस ताकत को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर किसी भी वजह से नहीं कर पा रहे तो वो क्या वजूहात हैं? मॉर्निंग शोज आर बीइंग डिस्कस्ड इन न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स शोज. रेयर है लेकिन इसकी वजूहात हैं. स्टे ट्यून्ड. ब्रेक के बाद वापस आते हैं.